the first film on the theme underrepresentation of women in decision-making bodies. During her tenure as president, woman legislator in its history of 54 years. Biden's agenda for women includes improving The Women's Reservation Bill was introduced in Parliament. While March 8 celebrates women's rights and women's empowerment, Rwanda has the highest representation of women in politics in the world. Women's participation in election is critical for several things in the country. Misconception that leadership, and particularly the direct seats, are for men. This didn't just come overnight, it was intentional to empower women. women are underrepresented in the decision-making positions globally. Only 3 countries have more than 50% representation of women: Cuba, Bolivia, and Rwanda. Chosen women to fill many key cabinet positions, as well as his entire senior communications team is made up of women. Women are nearly 50% of the population and only hold around 22.5% of public offices. Among the 193 countries, India stands 148. राजनीति औरतों का काम नहीं है. It's just simpler for a woman to handle her responsibilities at home and leave the politics to men, है ना? The social codes of ancient Indian society tended to straitjacket elite women into domestic roles, denying them entry into the political sphere. महिलाओं ने आज तक जो भी अधिकार हासिल किए हैं, वो सभी संघर्षों की बदौलत हासिल किए हैं. This enabled nationalist feminists like Sarojini Naidu, Hirabai Tata and Mithan Lam to push for greater participation of Indian women in politics, including their right to vote. With 14.4% women representation in the parliament, which is 78 members out of the total 543. This is happening even 25 years after the proposition of the Constitutional Amendment Bill for 33% of reservation of seats for women in India's central and state assemblies in 1996. In the 2019 parliament elections, it is women who cast more votes than men. against all norms and principles of a progressive and empowered society. जानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए. We don't want to be celebrated for what we give up. We want to be celebrated for what we are. What is the kind of republic we want? What is the India that we want today? जहाँ तक महिला आरक्षण बिल का सवाल है, मैं शुरू से इस बिल की समर्थक रही हूँ. The political agenda has to shift. The political agenda has to change to make these priorities. India, being the largest democracy in the world, where more than 50% of its population constitute women, still women seem to be underrepresented in the decision-making bodies. Who else to speak on this topic other than the chairperson of the Commonwealth Women Parliamentarians of India region, Srimati Sunita Duggal ji. With a round of applause, let us welcome her and let's hear what she has to say on this very important topic. Over to you, ma'am. आज़ादी के 75वें साल में हम सब यहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए इतनी संख्या में हमारी यहाँ पर महिला प्रतिनिधि बैठी हैं. सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ
कि आप में से कितनी हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसी हैं जो हिंदी समझती हैं। कृपया अपना हाथ खड़ा करें, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंगली हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करूँगी, ठीक है। और हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। I think Hindi number is much more than the English one, but anyhow, जैसे कि कल हमारी सुभाषिनी जी जो हैं, उन्होंने इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स किया था। इन द सेम वे आई विल स्पीक इन बोथ द लैंग्वेज so that everybody can understand. So first of all, I would like to thank Honorable Speaker of Kerala, M.B. Rajesh ji, because what is happening over here, this was my dream, because being a chairperson of Commonwealth Women Parliamentarian India region, I was thinking to organize such type of conference, but he has taken the lead. Anyhow, we are really waiting for the lead to take, and he has taken the lead. I congratulate him and the Kerala Assembly to organize such a beautiful program. इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी बहुत से स्पीकर्स, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट सेशन है, दिस इज़ द लास्ट सेशन, और बहुत से टॉपिक्स पे बहुत बारीकी से, बहुत वेरी माइन्यूटली द टॉपिक्स वर चोजन, और उसमें एक एक स्पीकर ने बहुत अच्छी अपनी बात जो है यहाँ पर रखी। और एक मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि वाई मिस्टर M.B. Rajesh is so sensitive about the females. And Honorable Speaker of Lok Sabha, Om Birla, he has sent me here as a representative of Lok Sabha. उन्होंने मुझे यहाँ पर लोकसभा का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते भेजा है, और हमारे M.B. राजेश जो हैं, इन्होंने ये इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे हिंदुस्तान का जो आखिरी छोर है केरला, यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इसके पीछे मैंने जब देखा तो आप हैरान होंगे कि इसके पीछे का कारण मुझे जो एक नज़र आता है, हमारे ऑनेबल जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो भी बहुत ज़्यादा फीमेल्स को जो है वो उनको अप्रिशिएट करते हैं, और उनको वहाँ पर लोकसभा के अंदर उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। नॉट इवन अ सिंगल वुमेन पार्लियामेंटेरियन इज़ देयर कि जिसको उन्होंने वहाँ पर बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी हो। रादर एक हमारी बहुत ही ओल्ड एज हैं, मे बी 80 और प्लस 80+, उनको बोलना ठीक से नहीं आता है, तो उनको लिख के उनको कहा है, लेकिन देयर शुड बी नो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव कि जो लोकसभा के अंदर अपनी बात को ना रख पाए। तो ऐसे हमारे ओम बिरला जी, हमारे स्पीकर सर, उन्होंने मुझे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेजा है। तो इन दोनों के अंदर खास बात जो मुझे लगी, आप भी सोच के हैरान होंगी, व्हाट इज कॉमन बिटवीन बोथ ऑफ देम? बोथ ऑफ देम हैव 2 daughters, दोनों के 2 बेटियां हैं। सो जिनके बेटियां हैं वो समझ सकते हैं कि वुमेन की जो है क्या उनकी सेंसिटिविटी है, उनको बहुत। और आई प्रे कि जितने भी पावरफुल मैन हैं, दे शुड हैव एटलीस्ट 2 daughters, उनको कम से कम 2 बेटियां हर पावरफुल आदमी के पास होनी चाहिए। बेटा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनके पास 2 daughters कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि in that way they will have 3 women in their house. So जो हम बोलते हैं कि महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ शक्ति, तीनों के तीनों उनके घर में विराजमान रहेंगी। तो आई प्रे कि हर पावरफुल आदमी के घर में 2 daughters कम से कम होनी चाहिए। सो ये मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। And my sincere greetings to all my fellow panelists as well as the members over here. So I would like to express my sincere appreciation for the opportunity to speak here, and the topic of significant importance in contemporary times. As a former woman public servant, I was an IRS officer earlier and a sitting member of parliament. I feel privileged to tell you about the rise of women's participation in electoral democracy and why we must strive to increase their representation in public offices. आप ये देखिए कि यूएसए और यूके का, जैसे कि यस्टरडे इटसेल्फ हमारी एक स्पीकर ने बोला था, 1 सेंचुरी लगी थी उनको कि हमारी जो वुमेन जो हैं उनको वोटिंग राइट्स मिले, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से आज हम सब लोग इस काबिल हैं कि हम यहाँ इस डायस पर बैठ सकते हैं, यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर हम बैठ सकते हैं। और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट फ्रॉम बिगिनिंग इंडिया को जो है, ये हमारी इंडिया की जो वुमेन है उनको ये राइट दिया कि वो वोट कर सके।
So women are underrepresented in our political system as they make up about half of India's population, yet their representation in the system is not in this proportion. Increasingly, the engagement of women in politics is a substantial step toward empowering them socially and politically. Women's equal participation and leadership in political and public life are also essential to achieving the sustainable development goals by 2030. India's first ever Lok Sabha in 1952, everybody knows, comprised only 5% female members. Female consisted of nearly half of the population, and this number was not reflective of the size of the demographic. The underrepresentation of women has existed for a long time and across different career paths, but it is to be noted that India was much further ahead than Western democracies such as USA and UK, who had 3% and 2% female representation in their respective houses in the same time period. In the 1962 Lok Sabha polls, for which the Election Commission for the first time presented separate numbers for male and female voters turnout, women constituted a measly 46.7%. But by 2019, as my earlier speaker they were telling, 2019 में आप उछाल देखिए कि 2019 में जो हमारी महिलाएं जिन्होंने वोटिंग किया है वो आदमी लोगों से भी आगे बढ़ गई हैं वोटिंग करने में। इसका मतलब कि 2019 के अंदर जो हमारी सरकार बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो हमारी महिलाओं का है। और ये क्यों है? क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस चीज को बहुत बारीकी से जज किया, और इसलिए आप देखिए, चाहे हम गुजरात की बात करें, सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री गुजरात से, सबसे पहली महिला स्पीकर गुजरात से, सबसे पहली जो महिला पंचायत की वहां की जो सरपंच हैं वो मीनाबेन, वो गुजरात से। तो ये उन्होंने माइन्यूटली नोटिस किया। बहुत समझदार पॉलिटिशियन है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर। तो उन्होंने क्या किया कि जो चीजें उज्ज्वला योजना कि ठीक है महिलाओं को हम ऐसे गैस कनेक्शंस दें ताकि वो जो है वो सरकार जो है उसके बारे में अप्रिशिएट करें सरकार को कि हमारे बारे में सरकार ने सोचा। इन द सेम वे टॉयलेट्स के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, किसी लीडर ने नहीं सोचा। रादर इसके बारे में सोचना भी जो है ये माना जाता था कि इसके बारे में भी क्या बात करनी। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने शौचालय के बारे में सोचा। हमारी बहुत सी हमारी रिप्रेजेंटेटिव्स ऐसी हैं कि अगर वो गांव में जाती होंगी तो वो देखती होंगी। इवन हम लोग अभी भी गांव में जाते हैं और मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हम लोग कैंपेनिंग वगैरह करते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं, तो समटाइम यू फील लाइक कि हमें ये जो नेचुरल कॉल है उसके लिए कहाँ जाएं। तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, आपको वहां पर टॉयलेट्स नहीं मिलेंगे ढंग से। तो ये इस तरीके से हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं जब तक हमारी जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो अगर पूरी नहीं होंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और इसीलिए ये जो डिसीजन था कि जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उसके अंदर 33% जो है पहले, उसके बाद रिजर्वेशन, उसके बाद सभी स्टेट्स में आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स दे हैव 50% ऑफ रिजर्वेशन फॉर द लोकल बॉडीज। हमारे सरपंच जो महिलाएं हैं वो मोर देन 50% जो है वो। और आप एक चीज इसमें नोटिस करें, क्योंकि हर चीज को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद उसके आउटकम क्या है इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। तो आप हैरान होंगे कि 62% जो है वो गांव ऐसे हैं कि जहां पर जो पानी की प्रॉब्लम है वहां सॉल्व हुई है जहां पर के महिला सरपंच है। वेयर देयर वी हैव फीमेल सरपंचेस, 62% जो है वहां पर पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है। तो अगर आप महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो आप उसका आउटकम भी देखते हैं, आप उसका रिस्पांस देखते हैं कि कितना अच्छा उसका रिस्पांस मिला है। तो मुझे लगता है कि इसलिए बहुत सख्त जरूरत है आज के समय में कि जहां कहीं पर भी हमारी महिलाएं जो हैं वो ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं तो उनको ठीक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। आप रिजर्वेशन जो है और रिप्रेजेंटेशन दोनों में हालांकि बहुत महीन सी लाइन है, बहुत एक बारीक लाइन है दोनों के बीच में, क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो रिप्रेजेंटेशन मिलेगा नेचुरली, और अगर आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, पहले से ही आप रिप्रेजेंटेशन अगर महिलाओं को दे रहे हैं तो रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। दोनों चीजों को आप अगर माइन्यूटली देखें, अगर आप रिजर्वेशन देते हैं ठीक है, अभी नहीं तो कल धीरे धीरे महिलाएं जो हैं, जैसे कि अभी हमारी जो मिसेस पांजा थी, हमारी ऑनरेबल जज जो है, उन्होंने बताया
कि 200 जो न्यूली इंडक्टेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो हैं उनमें से 125 महिलाएं हैं। आई मीन वो क्रॉस कर गई ना 100 से, क्रॉस कर गई। यहां पर आपने देखा कि केरला की जो जुडिशरी है उसके अंदर जो न्यूली इंडक्टेड, आई डोंट नो कि आप लोगों ने बारीकी से उनके स्पीच को सुना कि नहीं सुना, लेकिन मैंने बहुत बारीकी से सुना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये जरूरी है कि देखिए ये कार्यक्रम केवल और केवल महिलाओं के लिए किया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग अभी भी उतने सीरियस नहीं हैं। कल जो यहां पर अटेंडेंस थी, उसके बाद आफ्टर लंच जो अटेंडेंस हुई, और उसके बाद इस सेशन में जो अटेंडेंस है बहुत कम, धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही है। इट मींस वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, वी आर शोइंग दिस दैट वी आर नॉट दैट मच रिस्पॉन्सिबल। और यही चाहिए आदमी लोगों को, उनको मौका चाहिए कि देखिए आपको दिया था जो है जिम्मेवारी, क्या किया आपने। तो एक हमारे स्पीकर सर ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम लोगों का कार्यक्रम अगर ऑर्गेनाइज किया, तो राखी जी जैसे बोल रही थी यहां पर, तो क्यों नहीं हम सबको सुने। राइट फ्रॉम यस्टरडे, जब से ऑनेबल प्रेसिडेंट साहब यहां पर पहुंचे, मेरी भी बहुत बड़ी लोकसभा है एंड आई एम द ओनली वुमेन पार्लियामेंटेरियन फ्रॉम हरियाणा। लोकसभा राज्यसभा में मैं अकेली हूं, और अब तक जब से हमारा हरियाणा बना है, केवल और केवल मात्र 6 जो हैं वो एमपीज रही हैं, और उनमें से मुझे एक सौभाग्य मिला है। मेरे पास भी बहुत काम है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप अगर जो है फर्स्ट टाइम एमपी हूं मैं, और आप खोल के देखिए यूट्यूब में कौन सा बिल ऐसा होगा कि जहां पर मुझे मौका मिला और मैंने उस बिल के ऊपर बात ना की हो। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरे ऑनेबल चीफ मिनिस्टर साहब का 29 को रैली है, लेकिन मुझे ये लगा कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत जरूरी है कि यहां पर हम लोग उपस्थित हों, यहां पर हम लोग आपस में एक दूसरे से चर्चा करें और कैसे इस बात को आगे बढ़ाया जाए कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले। तो मुझे जो यहां उपस्थित हैं उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि वो सिंसियर हैं इस बात को लेकर। लेकिन जो केवल सिर्फ प्रेजेंस शो करने के लिए आई हैं और उसके बाद कोई मार्केट में गया है, कोई बीच पर गया है, देखिए वो सब अरेंजमेंट भी यहां पर करके रखे हुए हैं, लेकिन एटलीस्ट जिस काम के लिए हम आए हैं उसके लिए हमें सीरियस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। सिर्फ मांगना जो है ना, क्योंकि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, इफ यू आर एबल एनफ, तो मजबूर हो जाता है इंसान आपको कुछ ना कुछ देने के लिए। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें सिर्फ ये कि जब बात आती है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की जब बात आती है, वुमेन रिजर्वेशन की जब बात आती है कि हमें यहां पर भी हक मिलना चाहिए, वहां पर भी हक मिलना चाहिए, हम सब मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो मिला हुआ है उसको हम कितनी शिद्दत से, कितनी ईमानदारी से, कितनी मेहनत से निभा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इट इज वेरी चैलेंजिंग कि आपको ये मौका मिला है, इस मौके में आपको साबित करके दिखाना है। इफ यू आर सक्सेसफुल तो आपको आगे भी मौके मिलेंगे, बट इफ यू फेल्ड तो आपसे ये भी छीन लिए जाएंगे। तो इसलिए ये मैं कहना चाहती हूं कि हम सबको इन चीजों को बड़ा सीरियसली देखना चाहिए। और आगे जो है पंचायत के बारे में अगर हम बात करें, द रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत विच वाज ब्रॉट इन बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज एंश्योर्ड दैट 1/3 ऑफ द लीडरशिप पोजीशन एट द पंचायत लेवल्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू अबाउट दैट। और उसके बदौलत आप ये देखिए 1.3 मिलियन, आज के तारीख में 1.3 मिलियन वुमेन जो हैं वो इंडिया में आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इंक्लूडिंग मैनी फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। ऐसी भी हैं जिनके पास, लेकिन एक लगता है कि यस, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, आई एम सरपंच, बहुत अच्छा लगता है। हम भी जाते हैं, जाकर गांव में देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। दे फील सो प्राउड कि हम इस गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। और रही बात, ये भी आपके हाथ में ही है, बहुत सी हमारी महिलाओं ने ये बात कही है कि पति सरपंच हो जाते हैं, पति एमएलए हो जाते हैं, पति एमपी हो जाते हैं। भाई पति एमपी को तो हमने पति नहीं होने दिया है, बाकी मुझे नीचे वालों का जो है वो उनका मुझे कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि क्या है कि आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, बहुत देखभाल के आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और दूसरा ये कि सोच के देखिए कि इंसान को पैदा करने वाली औरत, और यहां पर जो है ये इतना सा भी रत्ती सा भी अंतर जो है वो परमात्मा ने नहीं किया है, बिल्कुल कुछ भी यहां पर जो है वो चेंज नहीं किया है। बुद्धि जो है अगर चलाने लगे तो महिलाओं की ज्यादा चल जाती है, बल्कि आदमी लोगों से भी।
लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग यूज टू नहीं है और हम लोगों को लगता है कि हमारा ये काम नहीं है, तो इसलिए हम ज्यादा चलाते नहीं है इसको। और जो भी कोई जिम्मेवारी आपको मिले, आई रिक्वेस्ट कि आप उसको शिद्दत से और ईमानदारी से निभाने की कोशिश करें। Over the years, we have seen the elected women representatives have grown substantially in number. They have become more knowledgeable, aware of their power, and have learned how to manage positions of power to tackle political and bureaucratic hurdles. The hands-on experience with local issues has assisted in raising their capacity, skills, and awareness, which has further contributed to the village level development in the country. Today, almost half of all the elected representatives in Panchayati Raj institutions are women, and they have stepped up as leaders of their community. In India, today, elected women representatives across all levels of democracy are actively involved in the conceptualization and formulation of public policies and grassroots governance. India has reiterated its commitment at the United Nations to work for the meaningful participation of women in democracy as well as the various issues of governance in order to mainstream the concept of women leadership. Internationally, India is signatory to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979, and India is also signatory to the Universal Declaration of Human Rights, which recognizes the right of every person to participate in the governance of their country. Interestingly, investment by women leaders have led to improved human development outcomes and have facilitated entrepreneurship and initiatives by women. For example, it was discovered that the number of drinking water projects in Panchayati Raj by women was 62% higher than the panchayats with a male sarpanch, as I have already told you. Entrepreneurship में भी देखिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑफिसेज में या के पॉलिटिकल सिनेरियो पे नहीं, बिजनेस लाइन में भी हमें पार्टिसिपेशन रखना चाहिए। मैं देखती हूँ कि मैं इनकम टैक्स में अधिकारी रही, IRS ऑफिसर, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, जितने भी हम लोगों के पास चार्टेड अकाउंटेंट्स या एडवोकेट्स आते थे, तो उसमें बहुत कम महिलाएं होती थी। इवन एट दैट टाइम आई यूज टू एनकरेज, मैं उनको, बहुत से बच्चियों को मैं कहती थी कि क्यों नहीं आप चार्टेड अकाउंटेंट CA क्यों नहीं करती हो, आप क्यों नहीं इसकी प्रैक्टिस करती हो, इनकम टैक्स के लिए प्रैक्टिस करती हो। तो हर जगह पर हमें एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी महिलाओं की जो है वो वहां पर संख्या बढ़नी चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत सी, इंदिरा नूई के बारे में बात करें हम, कहां से कहां पहुंच गई, और कितनी हमारी महिलाएं हैं कि जो अगर बिजनेस लाइन में भी आती हैं तो वेरी सिंसियरली वो कहां से कहां पहुंच जाती हैं। और खासकर मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ग्रेजुएशन में, आई वॉज बेस्ट एथलीट ऑफ माई कॉलेज फॉर कंटिन्यू 3 years। तो एट दैट टाइम जो मेरे साथ में जो हमारे अग्रवाल समाज थे, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती थी, सो इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट, लेकिन ग्रेजुएशन होते ही उनकी शादी कर दी गई। और उसके बाद हम लोगों ने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद फिर सर्विसेज में आए, और उसके बाद वो हमें देख के कहती हैं, यार यू आर सो लकी, हम लोगों को तो मम्मी पापा ने ना बस ग्रेजुएशन करते, हमसे उनका कैलिबर कई गुना ज़्यादा, हमसे वो कई गुना ज़्यादा इंटेलिजेंट, लेकिन उस कैलिबर को वहीं दबा दिया गया। ये भी बहुत 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 मायूसियत की बात है। अपनी बच्ची को जहां तक वो चाहे उसको हमें पढ़ाना चाहिए, ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। एजुकेशन के बिना कुछ नहीं। आज केरला के अंदर, केरला जो है हम सबको लीड कर रहा है, आप देखिए कि सबसे कॉर्नर पे, सबसे छोर पे ये है, और केरला हमें लीड कर रहा है। हर चीज में महिलाएं यहां पर आ गए हैं, तो केवल और केवल यहां का लिटरेसी रेट पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है। और उसकी वजह से आप ये देखिए कि चाहे हम ऑफिसेज की बात करें, चाहे हम यहाँ पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बात करें, उन सब के अंदर संख्या जो है वो दिनों दिन यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी इसके साथ साथ कि I can cite to the distinguished delegates a number of heartwarming and inspiring stories about the impact that women representatives have played in their village. Let me cite the example of one Meena Behan, who became the first woman sarpanch in the district of Vyara in Gujarat. Today, this panchayat is an all-woman panchayat, and she has also started a self-help group for women, which has contributed to the economic development and empowerment of the village and its women. देखिए, उसको मौका मिला तो उसने पूरा बदल डाला। सब महिलाएं उनकी पंचायत में अभी, जो हमारी गुजरात की जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और अभी आप देखा होगा आप लोगों ने
कि इसके साथ साथ एक एंड अनदर इंस्पायरिंग एग्जांपल इज ऑफ मिस आरती देवी, formerly working as an investment officer with a leading bank. She left her job to become the Sarpanch leader of her village in Ganjam district, Orissa. This made her one of the youngest Sarpanch leaders of the nation. Not only that, she has started a massive campaign for female literacy, which has helped the women of her village achieve almost 100% literacy of that. अब देखिए, एक लीडिंग बैंक को छोड़कर वहां पर सरपंच बनी और उसके गांव में 100% लिटरेसी है वुमेन की. तो ये अचीवमेंट्स हैं, इनकी वजह से जो है हमें लगता है कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. So there is no doubt that bringing in elected women representative to the mainstream represents a social change, and social changes take time and persistence on the part of the stakeholders. So अभी मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे पास में आके खड़े हैं तो मुझे कंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि और भी स्पीकर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए टुडे अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपने देखा होगा कि हमारे 7 वुमेन अभी एमपीज, जो मेरी बहुत वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उनको अभी जो है एमओएस एज अ एमओएस इंडक्ट किया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने. तो मुझे लगता है कि अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता है, इवन जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ माइन, मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है और मुझे कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में आ सकती हूँ, बट समहाउ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था सोशल एक्टिविटीज़ में, तो इन 2014 आई टुक वीआरएस, और अभी मेरे 17-18 ईयर्स सर्विसेज के बाकी थे, तो वहाँ से वीआरएस लेकर और एंड आई ज्वाइंट भारतीय जनता पार्टी, और उसके अंदर मुझे 2014 में मैंने असेंबली लड़ा, लेकिन समहाउ 435 वोट से जो है आई कुडंट विन. उसके बाद मैं चेयरपर्सन बनी फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की, और 2019 में मौका मिलते ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों के सामने, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मेरे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हैं उन सब के ब्लेसिंग से. तो बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि to conclude, I would like to emphasize that equal participation and representation of women should be considered a prerequisite going forward, as it is also foundationally important for a harmonious society and coexistence as well. Effective and proportionate representation of women in policy making and decision making will surely have a positive influence on the policies, vision and structure of our government. So, and कि अभी being a chairperson of Commonwealth Women Parliamentarian, मैं बहुत जल्द अगस्त से पहले आप लोगों का एक ऐसा ही सुंदर सा कार्यक्रम इंडिया के किसी भी कोने के अंदर करवाने वाली हूँ. तो मैं आप सबको अभी से इनवाइट करती हूँ और सबको वेलकम करती हूँ कि आप सब लोग उस कार्यक्रम के अंदर ज़रूर उपस्थित हों, क्योंकि बीइंग चेयरपर्सन ये हमें जो है हेडक्वार्टर से भी, वहाँ से भी हमें निर्देश होते हैं कि आप जो है वुमेन्स के इस टाइप के प्रोग्राम जो हैं वो करवाते रहें. तो इन द फाइनली स्वामी विवेकानंद जी ने जो एक बात कही थी, उसको बात को कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगी यहाँ पर. देयर इज नो चांस फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड अनलेस the condition of women is improved. It is not possible for a bird to fly on only one wing. स्वामी विवेकानंद जी ने ये बात कही थी, और मुझे लगता है कि सच में अगर हमें उड़ान भरनी है, अगर हमें विश्वगुरु बनना है, अगर हमें हिंदुस्तान को दुनिया के मानचित्र पर सबसे आगे देखना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम महिलाओं को जो है प्रोत्साहित करें, महिलाओं को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दें, और महिलाओं को ये जरूरत है कि वो अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पर साबित करके दिखाएं. इन्हीं शब्दों के साथ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much, ma'am, for that very candid as well as very insightful words. We hope that in the conference that you will arrange, all of the delegates who have assembled here would also join, and many more women would take inspiration from you. We have another esteemed speaker amongst us who will be sharing her thoughts today, Srimati Inderjeet Kaur Manji, who is an honorable member of the Punjab Legislative Assembly and a MLA of Aam Aadmi Party from Nakodar Assembly constituency. May I request her now to share her views on the topic. Good afternoon, all of you. Honorable Shrimati Sunita Kumari Duggal, MP Haryana. Mamta Bhupesh, Minister Women and Child Development, Rajasthan. Shrimati Sangeeta Kumari, MLA Bihar. Shrimati
Dalima, Honorable Member, Kerala. All of you, I feel honored and humbled to be part of this great initiative of Kerala. I would like to special thank respected Speaker of Kerala Legislative Member Assembly, M.B. Rajesh, for organizing this conference for women legislators of India. और कुछ स्पीकर साहब कुछ खास अटैचमेंट हो गई है क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो बेसिकली जलंधर से हैं. I am Inderjit Kaur Mann from Punjab Legislative Assembly member. पंजाब क्रांतिकारी सोच का मुजस्मा, पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाला, पंजाब पूरे देश का पेट पालने वाला, पंजाब जिसने हमारे देश को इतना अनाज दिया कि हमारे पास सरप्लस अनाज जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, पंजाब गुरुओं पीरों फकीरों की पवित्र धरती, पंजाब हमारे शहीदों की, शहीद आज़म सरदार भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह जी और मैनी मोर फ्रीडम फाइटर्स, पंजाब की तरफ से आप सबको प्यार से ओत प्रोत सत श्री अकाल। कल से ये चौथा सेशन है। मैं समझती हूँ ये केरला ही सोच सकता था। 100% लिटरेसी यहाँ पे होगी, वही सोचेगा कि ये सुंदर सुंदर पूरे देश का गुलदस्ता हमारे प्यारे प्यारे अपनी अपनी स्टेट की वेशभूषा में यहाँ पे आए हैं। बहुत धन्यवाद है केरला का, जिन्होंने ये इतना बड़ा मंच और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबको इकट्ठा होने की दी, एक दूसरे से बात करने की, एक दूसरे को समझने की, और वुमेन्स की हमारे देश में क्या हालत है, उनमें क्या सुधार करने हैं। हम सब खास तौर पे पूरे इंडिया की 9% औरतें, 9% नारी शक्ति, 418 MP एंड मेंबर लेजिस्लेटिव्स, ये छोटी ताकत नहीं है। हालांकि ये छोटी है, आज़ादी के बाद 75 साल के बाद ये हमारी गिनती कम है। ये गिनती कम क्यों है? हम में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, हम अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आम साधारण घरों से उठ के हम अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मैं पिछले 20 साल से समाज सेवा में हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, अपने गाँव की 15 साल लगातार मुखिया रही हूँ, और ये ग्राउंड लेवल की बातें हैं। ये धरती पे बिल्कुल ग्राउंड पे रहने वाले लोग, हम जैसे जिन्होंने रियलिटी देखी है, जिन्होंने हमारे गांवों में, हमारे शहरों में औरत को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, उनको ओहदे, उनको रैंक कैसे दिए जाते हैं। पिछले दिनों में 50% लोकल बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन दी गई है। बहुत सारे वक्ताओं ने ये बताया है कि उनके पति करते हैं, उनके भाई करते हैं, उनके ससुर करते हैं, उनके पिता करते हैं। मेरी साथी अनमोल गगन मान ने ये बात कल उठाई थी
और आज कल से लेके आज तक ये मुद्दा बनी हुई है कि एक्चुअल में रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। रिप्रेजेंटेशन उनको सार्थक कैसे करना है, आज ये सोचने के लिए हमें इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। आज हम एक चीज यहां से लेके जा सकते हैं, हमारे पास एमएलए की पावर है, ताकत है। उस परमपिता परमेश्वर में हमें यहां पे पहुंचाया है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में ही सोच लें। ज्यादा नहीं तो 5-5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, 5-5 लाख लोगों को, जिनमें मिनिमम 2.5 लाख 2-2 लाख औरतें हैं, पढ़ी लिखी हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ भी होंगी, रिजर्वेशन में आती हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अपर क्लास हैं। लेकिन ग्राउंड से उठता कौन है? पंचायतों से लेके, समिति से लेके, जिला परिषद से लेके किनको रिप्रेजेंटेशन मिलती है? पंचों और सरपंचों के साइन भी इस हद तक है ये चीजें, क्योंकि मैंने सरगर्मी से अपना गांव के मुखिया सरपंच होने का रोल अदा किया और जनरल सीटों पे भी मैंने अपना दावा छोड़ा नहीं तो रिजर्वेशन लाई जाती है, सरपंच बनाया जाता है, पंच बनाया जाता है और उनके पति बड़ी शान से वहां पे जाके सिग्नेचर भी खुद कर देते हैं। इस हालत को सुधारना कैसे? इस रिप्रेजेंटेशन को हमने इस समय से दुनिया के मुकाबले में लाना कैसे? अब वो समय तो रहा नहीं कि एक गांव का दूसरे गांव से मुकाबला है, या एक शहर का दूसरे शहर से मुकाबला है, एक स्टेट का भी दूसरे से मुकाबला नहीं। अब हमने दुनिया से मुकाबला करना है। तो दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें जो उस परम पिता परमेश्वर ने ये ताकत दी है, ये ओहदा दिया है, मेंबर लेजिस्लेटिव बनाया है, छोटी चीज नहीं है। हम इसको ऐसे ही नहीं गवा सकते। 5 साल बड़े होते हैं, 5 सालों में कम से कम नहीं तो 5-5 इलेक्शंस आ जाती हैं। कभी पंचायत की आ गई, कभी ब्लॉक समिति की आ गई, कभी जिला परिषद की आ गई, कभी एमपी की आ गई। इतनी इलेक्शंस जो आती हैं लोकल बॉडीज की, वहां पे हमको 50% औरतों को रिप्रेजेंटेशन देनी होती है। मेरी समझ में जो बात आती है कि हमारी एक ड्यूटी जो हमें फिक्स कर लेनी चाहिए, यहां से एक कमिटमेंट करके जानी चाहिए कि हम अपने हलके को, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जैसा ये गुलदस्ता सजा है, ऐसे गुलदस्ते हमें अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में सजाने चाहिए। औरतों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, औरतों में कमजोर भी नहीं है, बच्चा पैदा करती हैं, 206 हड्डियां एक बार में टूटे ऐसा दर्द सह के बच्चा पैदा करती हैं। कमजोर कैसे हो सकती हैं? कमजोर नहीं है, कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन एक इनकरेजमेंट चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए। कानून बन गए, लॉ बन गए, सब हो गया, सब कुछ कागजों में हो रहा है, लेकिन मोटिवेशन की कमी है। यहां परसेंटेज नहीं चलेगी, यहां पे फिगर्स नहीं चलेंगी, यहां पे दुनिया भर के कानून बना ले। कानून तो हमें दे गए ना, हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संविधान दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, उसमें है हमारे पास सारे राइट्स। 75 सालों के बाद अगर ऐसी असेंबलीज हमें लगानी पड़े तो हमें अपनी ही छवि पे शक होने वाली बात है कि कहां कमजोर हैं हम, कहां कमियां हैं हमारे में। आज यहां खड़े होके एक नेशनल लेवल की स्टेज जो हम साझी कर रहे हैं,
तो अगर ये करके भी हमने अपनी अस्तित्व के लिए, हम अपने लिए लड़ना है, हमने अपने लिए लड़ना है। हर नारी में हमने अपने आप को देखना है, हर नारी को हमने अपने जैसा बनाना है। ये एक कमिटमेंट हमें यहाँ से लेके जानी है। हम अपने अपने हलके में पंचायत मेंबर्स से लेके जिला परिषद मेंबर्स की तरफ ऐसा एक माहौल सिरजना शुरू करें जिससे उनको मोटिवेशन मिले, उनको इंस्पिरेशन मिले, उनको दुनिया का पता चले, उनको अपने अधिकारों का पता चले, उनको ये जो सही में रिप्रेजेंटेशन मिल रही है उसका पता चले, ताकि वो 50% अपने कर्तव्यों का पालन खुद कर सकें। टाइम की लिमिट है, हमें ये समझना ही चाहिए, लास्ट दिन है, लंच टाइम भी हो चुका है। आप सब यहाँ पे आए हैं तो प्लीज़ यहाँ से सिर्फ इस कॉन्फ्रेंस को सिर्फ अटेंडेंस दे के मत जाना, यहाँ से कुछ लेके जाना, यहाँ पे कुछ दे के जाना। और हमारी इस रिप्रेजेंटेशन वाली जो मुझे टॉपिक मिला था, इसको हमने सार्थक करना है, साथ लेके चलना है, अपनी महिलाओं को गले लगाना है, उनको अच्छे से ट्रीट करके जितना हम कर सकते हैं दूसरा कोई कर नहीं सकता है। ये पंजाब में अभी अभी इलेक्शन हुए हैं और 7% औरतों ने ज़्यादा वोट डाली है मर्दों से। तो क्या मतलब है इसका? कि वो चाहती हैं कि हमारी बारी आए, वो चाहती हैं, उनको एक आशा की किरण है कि हम औरतें अगर ज़्यादा बढ़ चढ़ के इलेक्शन में हिस्सा लेंगी तो हमारे लिए कुछ ना कुछ पड़ा है, हम इन दुखों से निजात पा पाएंगे, हम जिल्लत से निजात पा पाएंगे, हम डौरी से निजात पा पाएंगे। हम इस देश की संस्कृति को हमने संभाल के रखना है, पेशेंस के साथ, संस्कृति के साथ इस देश की नुमाइंदगी कर रहे हैं हम लोग। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करती हूँ अपनी स्पीच को। वेरी वेरी थैंक यू केरला, और आपका ये स्वागत, आपका ये प्लेटफॉर्म हम हमेशा याद रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने अपने स्टेट में ऐसे प्रोग्राम करें। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you for your kind words. Next, may I call upon a very senior leader from the Sikrai constituency of Rajasthan, Honorable Minister for Women and Child Development and Planning, Srimati Mamta Bhupesh ji, who is here to share her views all the way from Rajasthan. A huge round of applause to Mamta ji. स्टेज पे, डाइस पे मेरे साथ पे बैठी हुई हैं आज लोकसभा की सांसद हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, मेरे साथ में इंद्रजीत कौर एमएलए पंजाब, संगीता कुमारी एमएलए बिहार। राजस्थान शौर्य और वीरों की धरती, राजस्थान से आई हूं इसलिए आप सब लोगों को खमागणी कहना चाहती हूं। मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले हम सब लोगों ने मिलके केरल के स्पीकर ऑनरेबल एमबी राजेश जी को बहुत बहुत वोट ऑफ थैंक्स दिया, और मैं भी देना चाहती हूं उनको वोट ऑफ थैंक्स, जिनके अथक प्रयासों से, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके हम सब महिलाओं को, हम सब बहनों को यहाँ पर एक इकट्ठा किया, बुलाया और इज्जत और मान और सम्मान के साथ में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने का जो उन्होंने कोशिश की, मैं उनके जज्बे को सलाम करूंगी। और केरल आके देश के अंतिम छोर में, अंतिम छोर के राज्य की अनुभूति अपने आप में एक रोमांचित करने वाली है। केरल अपने आप में एक ऐसा स्टेट है जो मैं समझती हूँ हमारे बॉर्डर का स्टेट है, हमारे लास्ट स्टेट है, और जब हमारा बॉर्डर अगर मजबूत रहता है तो पूरा जो इलाका है वो भी मजबूत रहता है। तो केरल ने जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात को ठाना है, हम सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होके एक शक्तिपुंज बनने का मौका दिया है, तो हम सब लोगों का भी प्रयास रहता है कि हम लोग भी अपने स्टेट्स के अंदर जाके और इस तरह के आयोजन अगर हम नेशनल वाइड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे ग्राम पंचायतों के
महिला सरपंच, हमारी प्रधान, हमारी जिला प्रमुख, उनको इकट्ठा, हमारे काउंसलर्स को इकट्ठा करके हम लोग स्टेट लेवल पे इस तरह का कन्वेंशन करें, तो मैं समझती हूँ कि हम सब बहनों को केरल आने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। हम लोग किसी ज़माने में केरल की नर्सिंग सर्विसेज को सबसे श्रेष्ठ, सबसे बेस्ट हिंदुस्तान के अंदर माना जाता था, और 20-25 साल पहले हर बड़े हॉस्पिटल में अगर हम देखते थे तो केरल की नर्सेज हम लोगों को देखने को मिलती थी, और हम लोग सोचते थे कि डेडिकेशन के साथ में केरल की नर्सेज काम करती हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश की बहनों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने की जो अलख जगाई है, जो शुरुआत की है, वो केरल प्रांत है। इसलिए एजुकेशन की शुरुआत करने वाले केरल प्रांत ने लोकतांत्रिक प्रणाली को आगे बढ़ाना, महिलाओं के सशक्तिकरण के अंदर हमें क्या करना है, महिलाओं को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए इस देश के अंदर उनकी भागीदारी होनी चाहिए, किस तरह से महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इसके लिए जो शुरुआत की है, तो जिस तरह से शिक्षा की शुरुआत केरल ने की, उसी तरह से लोकतांत्रिक सिस्टम को आगे बढ़ाना, उनमें महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भागीदारी किस तरह से सुनिश्चित करना, इसके लिए शुरुआत की है। इसके लिए मैं केरल के सीएम, केरल के स्पीकर और पूरे लेजिस्लेटिव सिस्टम, जो कल रात को आपने देखा, हम लोग तो बहुत लेट तक थे, जो कल्चरल इवेंट के अंदर भी लोग विधानसभा की स्टाफ ने हम लोगों के सामने इतना सुंदर कल्चरल इवेंट प्रोग्राम प्रस्तुत किया। मैं समझती हूँ कहीं भी किसी भी राज्य में ऐसा तालमेल बहुत कम देखने को मिलता है। आज बात चल रही है महिला जागरूकता की, महिला सशक्तिकरण की, महिलाओं को लोकल बॉडीज में कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं जिस राज्य से आती हूँ, मुझे खुशी है इस बात की कि पंचायती राज की आज हम बात करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब वो पहले प्रधानमंत्री बने थे तो राजस्थान के नागौर से पंचायती राज के सिस्टम की शुरुआत की थी, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस देश की महिलाओं की तरक्की की बात की जा रही है। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को, जिनको इस देश के अंदर प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, और मैं समझती हूं कि आयरन लेडी के रूप में जो महिला न सिर्फ भारत में, मैं पूरी दुनिया के अंदर विख्यात रही, उनको सैल्यूट करना चाहूंगी कि वो हम सब लोगों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में आज हिंदुस्तान के अंदर उनको याद किया जाता है। पंचायती राज के आरक्षण की, लोकल बॉडीज की आरक्षण की बात की जाती है, तो एक सपना देखा था हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने, और मुझे खुशी है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने लोकल बॉडीज में 30% रिजर्वेशन पंचायती राज और लोकल बॉडीज के अंदर दिया। आज हम सब लोग, जो हमारी बहनें सरपंच, पंच, प्रधान, जिला प्रमुख, मेयर, चेयरमैन, इन तमाम पदों के ऊपर हिंदुस्तान की आधी आबादी आज बैठी हुई है, तो वो सोच थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की। मैं आज उनको बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा के साथ याद करना चाहूंगी, और इस देश के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए जो उन्होंने सोच रखी थी उस समय, जो कंप्यूटर क्रांति, आज हम लोग सब खुश होते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, कंप्यूटर हाथ में लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तमाम चीजें लेते हैं। ये सोच उस समय लेकर आए थे राजीव गांधी, जिन्होंने इस देश को कंप्यूटर क्रांति के साथ में जोड़ा। और मैं समझती हूं कि आज ये देश, जिस 75वीं आजादी की बात हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, इसके अंदर हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह जी के जो एफर्ट्स हैं, जो उनकी कार्यशैली है, जो उन्होंने इस देश के लिए कार्य किया, वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ है, वो भूल नहीं सकते। हम सब लोगों को याद रखना चाहिए कि 75 वर्षों के अंदर इस देश को आज़ादी में आने के लिए हमारे सारे लोगों ने क्या क्या किया। मैं अपनी आवाज़ को शामिल करना चाहूंगी, जिस बारे में हम सब लोग चिंतित हैं, जिस बारे में हम सब लोग रात दिन प्रयास करते हैं। मैं अपनी आवाज को मिलाना चाहूंगी हमारी महबूब नेता सोनिया गांधी जी की आवाज के साथ में, जिन्होंने 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा के लिए हमेशा कांग्रेस की नेता बन के आवाज उठाई, और वो चाहती है और हम सब चाहते हैं। मैं समझती हूँ किसी भी पार्टी की, दल की महिला हो, कोई भी हमारी बहन हो,
मुझे नहीं लगता कि कोई भी नहीं चाहती होगी कि हम लोगों को, महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा के अंदर 33% रिजर्वेशन मिले। सोनिया जी ये आवाज को उठाना चाहती है और मैं आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि हम सब लोग अपने अपने स्टेटों में जाके, अपनी अपनी विधानसभा में, अपनी अपनी असेंबली में जब भी हमारे सेशन आए, इस मुद्दे को वहां से पास करवा के लोकसभा और राज्यसभा में हम सब लोग भेजें और वहां जाके हमारे सांसद जो हैं वो इस चीज को पास करा के हम लोगों को, महिलाओं को एक रेस्पेक्ट, जो आधी आबादी का हिस्सा है इस देश का, इस देश की रीढ़ की हड्डी है और इस देश की तरक्की, इस देश की मान और सम्मान और प्रतिष्ठा के अंदर महिलाओं का जो योगदान रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए 33% रिजर्वेशन जो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी जी हमेशा बोलती है, उसके लिए आप और हम सब लोग अपने अपने स्टेट में जाके इस बिल को पास कराने के लिए अपनी असेंबली में बोले। मैं ये निवेदन आप लोगों से करना चाहती हूँ। किसी भी लोकतंत्र के सही संचालन के लिए जरूरी है कि सभी वर्गों और समूहों का संतुलन, बराबर प्रतिनिधित्व उनका हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो। मुझे खुशी है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए काम करना चाहते हैं, हमारी लोकल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके अंदर हमारी जितनी भी महिला कर्मचारी है, 30% रिजर्वेशन राजस्थान सरकार ने लेडीज को दे रखा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। मैं ये चाहूंगी कि हम सब लोग मिलकर आवाज उठाएं कि जो प्राइवेटाइजेशन आज इस देश के अंदर हो रहा है, हर चीज पीपीपी मोड पे की जा रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट्स हो, चाहे और भी संस्थाएं पीपीपी मोड पे की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। और प्राइवेटाइजेशन करने से मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि महिलाओं की जो उपस्थिति है वो कम होती जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ पे ये भी एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी महिलाओं को 30% की नौकरी बराबर पुरुषों के बराबर देनी चाहिए, तब जाके हम लोग अपनी उचित प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। आज प्राइवेट सेक्टर के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर महिला और पुरुष दोनों काम करते हैं और जब महिलाएं काम करती हैं उसी पोस्ट पे, अगर वो कोई टेक्निकल हेल्पर है या सुपरवाइजर है, तो वहां अगर पुरुष होगा तो उसको तनख्वाह ज्यादा दी जाएगी, उसकी सैलरी ज्यादा होगी, और उसी पोस्ट पे अगर कोई महिला होगी तो उसकी सैलरी कम कर दी जाएगी। हम लोगों को इस बात के लिए भी सोचना होगा, अपने अपने राज्यों के अंदर जाके हमारी इंडस्ट्री पॉलिसी बनानी होगी इस बात की कि हम लोगों को अगर कोई भी छोटी मोटी एमएसएमई की है, चाहे कोई बड़ी इंडस्ट्री है, उसके अंदर महिलाओं को बराबर का अगर वो पोस्ट पे काम कर रही है तो उसकी सैलरी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि वो घर भी संभालती है और जाके अपना काम भी संभालती है, उसको कम सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। ये हम सब लोगों को अपने अपने स्टेट में जाके चिंता करनी चाहिए। इसमें मैंने कल स्पीकर सर के कमरे में, चैम्बर में मैं मिलने गई, केरला की बहुत सारे लोगों ने, जेंट्स लोगों ने केरला की धोती पहन रखी थी, जो ये लोग, इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। मैंने उसके बारे में कुछ पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ है कि एवरी वेडनेसडे एवरी मैन शुड बी वेयर द केरला धोती। किस लिए? कि हैंडलूम के जो वेवर्स है उन लोगों को हेल्प हो पाए। अगर हर बुधवार को हमारा हर कर्मचारी, हर व्यक्ति, सरकारी नौकरी करने वाला केरल की बनाई हुई हैंडलूम की वीवर्स की धोती पहनेगा तो हमारे उन लोगों को काम मिलेगा और उन लोगों की ताकत बनेगी, उनको मॉनेटरी पैसों की हेल्प होगी। तो हम लोगों को, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ कि हमको, आपको और हमको भी अपने अपने स्टेट्स के अंदर एसएचजीज काम कर रही है महिलाओं की। राजस्थान के अंदर अगर हम बात करें तो लगभग 2.5 लाख से ज्यादा एसएचजीज और 30 लाख परिवार एसएचजीज के माध्यम से जुड़े हुए। हम लोग अगर अपने वहां पर जाके इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करें और हमारे एसएचजीज को, हमारे हैंडलूम वीवर्स को, हमारे खादी बुनकर्स के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम डेवलप कराने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि हम लोग उन लोगों की आवाज बन पाएंगे जिन लोगों की आवाज हमें बनने के लिए यहाँ पे हम सब आए हैं। मैं ज्यादा बात, क्योंकि 1 बजे गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर यहाँ पर आने वाले हैं, राजस्थान की गवर्नर साहब हमारे बीच आ गए हैं। आज राजस्थान की जो स्थिति है, मुझे बताते हुए खुशी है कि जिसको रूढ़िवादी प्रांत कहा जाता था, जिसको ये कहा जाता था
ऑनरेबल गवर्नर हमारे बीच में आए, मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारी सारी डेलीगेट्स की तरफ से। नहीं सर, इट्स ओके, थैंक यू। मैं राजस्थान से आती हूं और राजस्थान को रूढ़िवादी प्रांत कहा जाता था। भ्रूण हत्याएं वहां होती थी, घूंघट प्रथा वहां चलती थी, बाल विवाह वहां चलते थे। लेकिन आज मुझे खुशी है ये बात करते हुए कि राजस्थान के अंदर जो लड़का लड़की का भेद है वो 2015-16 में जहां 69% था, आज पिछले साल 2020-21 के अंदर हमने वो रेशो देखा तो हमारा 78% हो गया है। हम लोगों ने रेशो को बहुत बढ़ाने की कोशिश की। हमारे यहाँ भ्रूण हत्याएं जो एक तरह से ऑर्थोडॉक्स स्टेट बोला जाता तो उनको रोकने की कोशिश की है। राजस्थान की गवर्नमेंट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान अशोक गहलोत जी ने जो हमारी राशन की दुकान होती है, राशन की जो अपने सारे स्टेट्स के अंदर पीडीएस सिस्टम की राशन की दुकान है, वहाँ हमारा रिजर्वेशन है 30% फॉर वुमेन्स। हर राशन की अगर 100 दुकान खुलेंगी तो उसमें 30 महिलाओं को मिलेंगी। ये राजस्थान के अंदर फिक्स हुआ है। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहूंगी, राजस्थान के अंदर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है जो हमारी 10 लाख का बीमा पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हर परिवार को फ्री है और उसकी मुखिया महिला को बनाया हुआ है, पुरुष को नहीं बनाया हुआ। अगर आपको जन आधार कार्ड बनवाना है तो महिला के नाम पे अगर आप उसको रिजर्व बनवाओगे तो ही आपको 10 लाख की बीमा पॉलिसी के अंदर जोड़ा जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि राजस्थान की तरह अन्य स्टेट्स को भी महिला मुखिया को आगे बढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ पर आज महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमें शिक्षा के प्रति महिलाओं की बात करनी होगी। राजस्थान सरकार ने मैंडेटरी किया है कि अगर 11th 12th के अंदर किसी भी गांव के दूर दराज के स्कूल में 500 से ज्यादा अगर बच्चियां पढ़ रही हैं तो वहां पे ऑटोमेटिक हम लोग गर्ल्स कॉलेज अनाउंस करते हैं, वहां बनाते हैं। लास्ट ईयर हम लोगों ने 36 कॉलेज विद इन अ ईयर ओनली फॉर गर्ल्स कॉलेज हमने बनाई है, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे 500 गर्ल्स इन 11th और 12th के अंदर पढ़ रही हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं करना चाहती हूँ लेकिन समय का अभाव है। ज़्यादा लंबी बात नहीं कहते हुए, हम लोगों के राजस्थान में जो डेयरी बूथ है उनको भी अभी डेयरी के लिए 1000 बूथ्स महिलाओं के लिए अनाउंस हुए हैं और 1000 बूथ पे ओनली लेडीज को वो बूथ अलॉट होंगे। इन तमाम चीज़ों की चर्चा मैं आप लोगों से इसलिए करना चाह रही हूँ कि हम लोगों को आपस में अपने अपने स्टेट्स की जो पॉलिसीज़ है उनको शेयर अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे सबके स्टेट्स भी आगे बढ़ेंगे। और जिन बात की महत्व को ध्यान में रखते हुए, चिंता को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल केरल के स्पीकर ने ये बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया और हम सब महिलाओं के लिए एक तरह से माइलस्टोन बनेगा और हम सब लोग 26 और 27 मई की जो तारीख है वो हमारे सबके हृदय के अंदर, हमारे सबके दिल के अंदर, हमारे सबके मन और आत्मा और विचारों के अंदर एक गोल्डन वर्ड्स के साथ में लिखी रहेगी। हमारी गोल्डन मेमोरीज हम केरल से लेकर जाएंगे। मैं पुरजोर तरीके से आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हमने जो यहाँ पर सभी ने मिलके एक दूसरे के सुझाव सुने, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर की, ये जो इतना बड़ा महासमुद्र महामंथन जो हम लोगों ने पिछले 2 दिन से किया और हमारे बहुत अच्छे और बहुत सेलेक्टिव डिग्नेटरीज ने यहाँ पर अपनी बातें रखी है, मैं उन सब लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगी, आप सबको भी थैंक्स कहना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करूँगी कि आपका और हमारा सबका मंसूबा एक होना चाहिए कि हिंदुस्तान की महिलाएं मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ में अपनी ज़िंदगी को जी सके, इज्जत के साथ में अपनी ज़िंदगी को जी सके, हौसले की उड़ान के साथ में अपनी ज़िंदगी को जी सके। और आप और हम करोड़ों लोगों के आशीर्वाद से आज इस भवन में बैठे हुए हैं। हम लोग कोई लीगेसी से नहीं आए हैं। आपको और हमको हर व्यक्ति ने अंगूठा लगा के, मशीन पे बटन दबा के यहाँ पे बैठने लायक बनाया है। तो हमारी एक जिम्मेदारी, हमारी एक मॉरल ड्यूटी अलग तरह की होती है और उस ड्यूटी के प्रति हमें अपनी वफादारी रखनी है। मैं ये निवेदन करते हुए एक बार दोबारा पुनः केरल गवर्नमेंट, केरल के बहुत ही हम्बल स्पीकर, इनका नाम है MB राजेश। तो मुझे खुशी हुई कल देख के कि जब इनका नाम MB राजेश था तो मेरा नाम भी ममता भूपेश है। कई लोग मुझे भी प्यार से MB बोल देते हैं। तो मुझे लगा कि
इनसे मैं इंस्पिरेशन लेके जाऊंगी। अगर मेरे नाम के वर्ड के व्यक्ति है, कितने हम्बल स्पीकर, और इन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी हम सब लोगों को दी और एक इतनी अपॉर्चुनिटी हम सब लोगों को, देश भर की महिलाओं को। मैं समझती हूँ कि 75 वर्ष होने के बाद भी शायद ऐसा प्रोग्राम देश में, भारत में कहीं नहीं हुआ होगा कि तमाम पार्टी, तमाम दलों के लोग, तमाम दलों की महिलाएं और विभिन्न विचारधाराओं की महिलाएं, विभिन्न प्रांतों की महिलाएं यहाँ पर आके अपने बहुत प्यार से, अभिमान के साथ में अपने विचार विमर्श यहाँ पे शेयर किए। और हम सब लोग जो मेमोरीज लेके जाएंगे उनको हम लोगों को अपने प्रांतों के अंदर जाके, अपने स्टेट्स में जाके हमारे महिला सशक्तिकरण के लिए हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, यहाँ से जाएं और अपने अपने स्टेट्स के अंदर महिलाओं की तरक्की, उनके मान और सम्मान और प्रतिष्ठा के बारे में सोच के उनको आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला। Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for that very inspirational words of yours. Next, may I call upon Srimati Sangeeta Kumari, Honorable MLA from Bihar, who has over 12 years of experience in the field of women empowerment and social service. Ma'am, we would like to hear what you have to say on this topic. आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव के अवसर पर केरल सरकार के द्वारा आयोजित इतनी अच्छी महिलाओं के लिए कदम उठाने के लिए सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू थैंक MB राजेश जी, वेरी हार्टली थैंकफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ सच टाइप ऑफ प्रोग्राम। आई वुड लाइक टू welcome Honorable Governor of Odisha, Honorable Governor of Kerala, और मेरे साथ मंच पे बैठी हुई सुनीता दुग्गल जी, MP of हरियाणा, इंद्रजीत कौर जी, MLA of पंजाब, ममता भूपेश जी, मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, एंड ऑल हमारे क्षेत्र, देश की हर राज्य से आई हुई हमारी सशक्त महिला विधायक, हमारी बिहार से आई हुई सभी MLCs, हमारी विधायकगण, और सभी का हम पूरी अपनी एक बिहार की जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आप सभी का बिहार के तरफ से आपको धन्यवाद करते हैं, वंदन, अभिनंदन करते हैं। चूंकि महिला सशक्तिकरण की बात हुई है और मंच है, महिलाओं की सभा है, और कैसे महिलाओं ने अपने जीवन में संघर्ष किया है उसकी चर्चा हुई है। हम सभी विभिन्न राजनीतिक पार्टी से आते हैं, विभिन्न विचारधाराओं को रखते हैं, लेकिन जब महिलाएं एक मंच पे खड़ी होती हैं तो महिलाएं सिर्फ अपनी बात करती हैं कि आजादी के 75 वर्ष होने के बावजूद हम उस देश में रहते हैं जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलता है। आखिर उस देश में हम रहते हैं, आखिर क्या जरूरत है? प्रकृति ने तो प्राणी के रूप में पुरुष और स्त्री को बनाया है। प्रकृति की अगर भाव को हम समझ लेते तो शायद महिलाओं के हित में कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिक्र करना चाहेंगे, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु, हम का मतलब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हम सबसे पहले हमारा संविधान हमें लिंग के अनुसार पर भेद नहीं करता है। हमारा देश का संविधान बहुत हमें समानता की बात करता है। जितने कानून बने हैं हमारे देश में, जो राइट टू आर्टिकल 14 जो कहता है राइट टू इक्वेलिटी की बात करता है, लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद हम महिलाएं अपने आप को कहां खड़ा हुआ पाते हैं। और चलिए, हम तो विधायक हैं, हमें उन दलित महिलाओं की भी सोचनी होगी, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए उन महिलाओं के बारे में सोचना होगा, क्योंकि दलित महिला समाज की अगर महिला किसी पोस्ट पे जाती है तो वो भी बहुत अपनी अपनी बात कहती है, लेकिन उन महिलाओं की कौन जिनकी न शिक्षा है न अपनी बात कह सकती हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न का बात हो, भ्रूण में बच्चियां मार दी जाती हैं,
आज भी महिलाएं शोषण का शिकार होती हैं। बहुत ही समाज में अभी भी कितना भी हम स्मार्ट हो जाएं, लेकिन समाज में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत काफी हद तक मैं कहूंगी कि सुधरी नहीं है। लेकिन चूंकि मंच है और एक सशक्त महिला के रूप में हम सभी को मजबूत कदम उठाना होगा। हम आवाज उठाते हैं कि हमें लोकसभा और विधानसभा में हमें 50% आरक्षण की मांग करते हैं, ताकि हम सभी कानून बनाएं और जिस दिन हम आधी आबादी विधानसभा और लोकसभा में रहेंगे और पुरुषों के लिए कानून बनाने वाले में भी हमारी भी उतनी भागीदारी होगी, तब जाके महिला सशक्तिकरण सही रूप में आएगा। जिस दिन हमारी विधानसभा और लोकसभा में भागीदारी होगी। रही बात पंचायत स्तरों की बात करूं, कई हमारी बहनों ने कहा कि पंचायत में जितनी महिलाएं चुनी गई हैं कुछ अच्छा काम कर रही हैं, कुछ है कि हैंडलर से हैंडल होती हैं। अगर चूंकि मैं आरजेडी की विधायक रही हूं और मैं एक महिला अध्यक्ष के रूप में मैंने अपने क्षेत्र में काम किया है, मैंने झुग्गी झोपड़ियों से महिलाओं को निकाला और मैंने ये बात कहा कि जब वोट आता है तो आप देखती हैं, आपके पति डिसाइड करते हैं कि आप किन्हें वोट देंगी, आपके बेटा डिसाइड करते हैं कि हाँ कल आप जाके इन्हें वोट दे दीजिएगा। आप कब डिसाइड करिएगा कि आप किसे नेता चुनना चाहती हैं, आप चुनिए। और यकीन मानिए, मैं कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा की विधायक हूं और मैं सुरक्षित सीट से आई हुई विधायक हूं और आजादी की बाद पहली महिला वहां से मैं विधायक चुनी गई हूं। और मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि मैं एज अ विधायक, हमारा मकसद सिर्फ विधायक बनना नहीं, हमारा मकसद है कि जिन स्वतंत्रता संग्राम में हमारी महिलाओं ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, जिन महिलाओं की संघर्ष की बदौलत हम आज यहाँ चुने हुए हैं, हम आज यहाँ बैठे हैं, और जिन बाबा साहब के संविधान की बदौलत हम आज यहाँ इलेक्टेड हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य अपने समाज के प्रति पहले ही होती है। उन बहनों के प्रति कब जगेगा, उन बहनों के लिए हम लड़ाई कब लड़ेंगे। और बिहार की तो ऐतिहासिक भूमि रही है, महावीर और बुद्ध की भूमि है। और आपने देखा होगा देश की स्वतंत्रता से लेकर 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की अग्रणी भूमिका रही है। इसलिए एक महिला विधायक होने के नाते हम सभी सशक्त महिला हैं और अबला नहीं, हम सबला हैं। और जब हम सबला के रूप में हमारे पीछे जो महिलाएं हैं उनके लिए हम काम करेंगे, तब हम जाकर बात करेंगे। हम कहते हैं कि हम एज अ विधायक जब हम अपने काम को हैंडल नहीं करेंगे तो किस बात पर हम विधानसभा और लोकसभा में अपनी मांग करेंगे। तो सबसे पहले अपने काम में निपुणता आनी चाहिए। हमें कोई ये ना कहे कि महिला है विधायक बन गई, काम दूसरे कोई हैंडल करे, क्योंकि इसकी शुरुआत मैंने अपने क्षेत्र से किया है। एज अ विधायक मैं अपने काम डिसीजन मैं खुद लेती हूं, मैं खुद गांव में जाती हूं, मैं खुद समझती हूं मैटर को, मैं किसी को अपने आगे नहीं आने देती हूं। तो हमारा मकसद इन सभी, आप सभी हमारी प्यारी प्यारी बहनें यहाँ उपस्थित हैं और हम सभी ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हर जगह होने चाहिए, स्टेट वाइज भी होने चाहिए। और एक चीज़ है कि एक कदम हम बढ़ाएं और निश्चित रूप से हम जैसी महिलाएं जब बढ़ाएंगे तो समाज के अंतिम पायदान की बैठी हुई महिला भी जगेगी। और एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि महिलाएं को आगे बढ़ाना हो, जब तक से शिक्षा को हम नहीं आगे बढ़ाएंगे, जब तक से समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को हम शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम कितना भी सशक्तिकरण की बात कर लेंगे वो अधूरा है। तो हमें एजुकेशन को बढ़ाना होगा, हमें समाज को सशक्त करना होगा, झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं को आगे लाना होगा और उन्हें एजुकेट करना होगा, उन्हें बताना होगा कि ये नियति की देन नहीं, ये आपको भगवान ने नहीं बनाया कि आप शोषण का शिकार होइए, घरेलू हिंसा का शिकार होइए। बच्चियों को भगवान ने नहीं बनाया कि बच्चियों को, खासकर रूरल एरिया में आप देख लीजिएगा तो वो लड़की हो, ये हमारे भारत के गांवों में आज भी ये संस्कृति है। तो इस चीज को हमें आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को मजबूती से देनी होगी। जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो वो जान जाएंगी कि उनका संविधान उन्हें क्या अधिकार देता है, और जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो वो जान जाएंगी कि हमें किन्हें मत देना है, हमें किन्हें अपना वोट नेता चुनना है। तो अंत में मैं अपनी बातों को खत्म करूंगी कि तुम्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का,
तो हमारा काम भी है आशियां बनाने का। तुम्हें है शौक अगर बिजलियां गिराने का, तो हमारा काम भी है आशियां बनाने का। सुना है आप है माहिर हवा चलाने में, हुनर न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और केरला सरकार को आप सभी को हृदय से आभार और धन्यवाद। Thank you so much, ma'am, for ending it on a very high note. Thank you so much for sharing your thoughts on the same. For the vote of thanks, may I now call upon the Additional Secretary and the Executive Director of KLAMS of Kerala Legislative Assembly, Srimati Manju Varghese. Good afternoon, Honorable Governor Arif Mohammad Khan. Good afternoon, Honorable women representatives from various states across India. It is a great privilege, though unexpected, for me to have entrusted with delivering the vote of thanks for this session on underrepresentation of women in decision-making bodies. It's lunchtime, I know, so without any further delay, let me directly go to my assigned task. I express my sincere thanks on behalf of Kerala Legislative Assembly and Secretariat to Smith Mamata Bhupesh, Honorable Minister for Women and Child Development, Rajasthan. I also express my vote of thanks to Smith Sunita Dugal, Honorable Member of Lok Sabha, Smith Inderjit Kaur, Member Punjab Legislative Assembly, as well as Smith Sangeeta Kumari, Member Bihar Legislative Assembly. Before I conclude, let us hope that all the valuable views expressed here are put into action, and let us all work together for the empowerment of women. Thank you all. Honorable Governor of Kerala, Shri Arif Mohammad Khan ji is amongst us today. For your information and notice, he is the one who is hosting today's lunch for all the delegates of this National Women Legislators Conference organized by the Kerala Legislative Assembly. On behalf of all the delegates, we would like to thank you, sir. Yes, sure, sir. But before we move for the lunch, there is a resolution that has to be passed by this conference. So, with your permission, sir, it will not take more than 5 minutes. May I invite Srimati A. Tamilarashi, Honorable MLA and former Minister in charge of Adi Dravida Welfare, to move the resolution, the first resolution of this conference. May I request her to kindly come up to the dais. Srimati A. Tamilarashi, Honorable MLA and former Minister in charge of Adi Dravida Welfare from Tamil Nadu. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். எங்களுடைய தமிழக முதலமைச்சர் அன்பு தளபதியார் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி இந்த கான்ஃபரன்ஸில் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கின்ற வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அக்கா கனிமொழி அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லி இந்த தீர்மானத்தை நான் வாசிக்கின்றேன். திருவனந்தபுரம் Declaration of Legislation Prevent Abuse, Bullying, Derogatory, Misogynistic Conduct. The first National Women Legislators Conference held at Thiruvananthapuram on May 26-27, 2022 hereby calls upon all concerned, including the Union Government, all state governments and political organizations, parliamentary and legislator belong to various political parties to initiate well thought out concerned steps to formulate a comprehensive legislation to curb and prevent derogatory and misogynistic conduct in public, private and virtual spaces as a society. India and sizable section of its population, particularly
the male population have time and again attend notary on account their abusive, bullying, derogatory and misogynistic conduct, which has targeted women, transgender communities. The universal spread of social media platforms and the relative anonymity needs it offer have also spurred new level of crashes and crude behavior. There have been reflection of these abominable manners among the political classes too, both at the level of participants and all levels of the political structures, as well as the cyber wings created and run-up supporter of different organizations. In recent times, these trends have become all the more vicious. Several recent cases reported from different parts of country have shown that even senior, highly respected women's political leaders are being targeted. In effect, this type of behaviors is the manifestation of the worst forms of hegemonic power and patriarchy. The first National Women Legislation Conference asserts an equals terms that as a body, we would not condone this type of conduct any longer. Through this resolution, the conference called for a concerned mass movement of all right-thinking people to initiate measures to bringing in comprehensive legislation covering all parts of country to prevent and curb abuse, bullying, derogatory and misogynistic conduct. Thank you. May I call upon Srimati Rajkumari Thapa, our representative from the Northeast, Honorable MLA from Sikkim, to second this resolution, and then I will request all the delegates to kindly raise your hands so that we can pass this resolution. May I invite Srimati Rajkumari Thapa, Honorable MLA from Sikkim, to second this resolution. I second wholeheartedly the resolution. इसके साथ में मैं with due permission of the Honorable Governor Sahab and Honorable Speaker Sahab and all the dignitaries here, कुछ बात रखने की अनुमति चाहती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस अवसर पर नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर कॉन्फ्रेंस केरला 2022 के इस सुनहरे अवसर में मैं 22वां राज्य, छोटी पर सुंदर राज्य जो 16 मई 1975 में भारत के अभिन्न अंग बना है, सिक्किम के संपूर्ण महिला विधानसभा सदस्य और महिलाओं की तरफ से would like to convey our warm gratitude to Honorable Governor Kerala, Honorable Chief Minister Kerala, Honorable Speaker Sahab, especially to Honorable Speaker Sahab Sri M.B. Rajesh Sir for conceiving this holistic National Women Legislature Conference and
enabling us to be part of the same to discuss, deliberate, reflect, and prosperity of our great nations since 75 years of independence. और इसी के साथ में मैं अपनी मन की बात रखना चाहती हूँ। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने वुमेन को अर्थात महिलाओं को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग बॉडीज में कानूनी रूप पर स्थान देने के बाद बहुत सारे वुमेन लीडर्स विकसित अर्थात इवॉल्व होकर आए हैं। ये कानून बनने से पहले हम महिलाओं की क्षमता होने के बावजूद हमें डिसीजन मेकिंग बॉडी में जगह अर्थात प्लेस नहीं मिल पाता था, क्योंकि हमारे सोसाइटी पुरुष प्रधान है और हमारे राज्य में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अपना कैंडिडेट बनाने का ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है। ऐसी स्थिति में जब तक हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसा कानूनी रूप न होने पर हमें अपना क्षमता एवं योग्यताएं राज्य व केंद्र सरकार के उच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी में दिखाने का मौका नहीं मिल पाता है। हमें राज्य के सिक्किम राज्य के 32 एमएलए हैं, हमारा स्ट्रेंथ 32 है। इसमें से हम 3 वुमन एमएलए हैं और उनमें से हम 2 इस कॉन्फ्रेंस में अपना उपस्थिति देने के लिए आए हैं। और हमें दोनों ही पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के दिन मिलने से वुमेन सीट रिजर्वेशन के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में इलेक्ट होकर हमने अपना योग्यता जनता को एवं अपना समाज को प्रदर्शन करने के बाद हम एमएलए बन पाए हैं। आज हमारे राज्य सिक्किम में जितना भी वुमेन लीडर्स आज है उनमें से ज़्यादा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमेन रिजर्वेशन मिलने से ही आज स्टेट लेवल लीडर्स के रूप में इवॉल्व हुआ है। हमारे वहाँ पर सिक्किम में 50% रिजर्वेशन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2007 से मिला है, 2007 से दिया गया है। इसीलिए मेरा मानना है कि आज डिसीजन मेकिंग बॉडी में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें और कानूनी रूप में सहयोग मिलना चाहिए और पार्लियामेंट में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पड़ा हुआ है उसे पास कराने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी के साथ मुझे लगता है कि अनुभवी जितने भी वुमेन लीडर्स हो जो अच्छा काम कर रहे हो उसे सेकेंड चांस मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ पॉलिटिकल विल पावर should be pure and strong towards women empowerment and to carry forward women reservation bill to be placed in parliament which is lying since many years। और ये 2 दिन में जितने भी सेशन विभिन्न महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुआ और हमारे देश के प्रतिभाशाली सशक्त ऑनरेबल एंड रेस्पेक्टेड वुमेन लीडर्स ने अपने अनुभव ऊर्जावान प्रेरणादायक ज्ञान से भरा वक्तव्य सुनने का हमें अवसर प्रदान किया है। ये कॉन्फ्रेंस ने अवश्य ही हम महिला प्रतिनिधियों को इंटरनल पावर मिला है, अपने अंदर के महिलाओं को जगा दिया है। जब हम सब महिला चाहे हमारे भाषा अलग हो, पहिरन अलग हो, हमारे धर्म अलग हो और हमारा विचार अलग हो, हमारा पार्टी अलग हो, पर फिर भी हम सब महिला एक साथ महिला के हित में एकजुट होना जरूरी है। हम वुमन अर्थात हम महिला अपने घर, अपने समाज, अपने राज्य और अपने देश को सजाने का, आगे लेने का योग्यता हम रखते हैं। बस हम लोगों को अपने जिम्मेवारी ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करना है और आत्मसम्मान के साथ डटे रहना है, आत्मबल को मजबूत बनाना है, अपने लक्ष्य को पाना ही पाना है। हम महिला एक दूसरे का कमजोर नहीं, लेकिन हम महिलाएं एक दूसरे के लिए ताकत बनना है। महिलाएं इतना आगे बढ़े कि महिलाओं को हराने के लिए कोशिश ही नहीं, साजिश से करने पड़े। वंदे मातरम, जय भारत, जय केरल, जय सिक्किम, जय महिला शक्ति।